So let us start. What is sentence? What is sentence? Set of words. Set of words that is complete in itself. That is complete in itself. यानी कि हम सेंटेंस उस चीज को कहते हैं जो हमें किसी चीज के बारे में बताता है मगर कंप्लीट बताता है. Information is complete. In a sentence, the information is complete. There is not incomplete information. सेंटेंस में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है. एक सेंटेंस में क्या होती है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है. एक सेंटेंस में क्या होती है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है. इस सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स. कौन कौन? एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट. कौन कौन? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Yes, sir. सेंटेंस के कितने पार्ट हैं? 2. कौन कौन? सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स. हमारे पास कितने टाइप के सेंटेंस हैं? 4 टाइप के सेंटेंस हैं. कितने हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1 सिंपल. नंबर 4 compound complex. Compound complex. I have already told you that for 3 consecutive years you were out of school. You were out of the school in 2019, 20, 21. It is by the grace of Almighty Allah we hope that this year will function smoothly. There won't be any sort of interruption by COVID or any other dread disease. May Allah save us from these diseases. So come to school regularly. Come to school regularly. Be punctual. Generate interest in yourself and be disciplined. And be disciplined. 2 things. If you want to achieve success in the life, one is interest. One is interest. Another is discipline. Yes, sir. So वे आज क्या हम पढ़ रहे हैं? सेंटेंस. मैंने क्या बताया? सेंटेंस. सेट ऑफ वर्ड्स दैट्स कंप्लीटेड. सेंटेंस के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट. कौन कौन? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेंटेंस कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के. वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अगर कोई आपसे पूछे सेंटेंस के कितने टाइप हैं, यू कैन से हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स. क्या क्या? Compound complex. कौन कौन? Simple, compound, complex, compound complex. Second, be attentive. A sentence can convey. A sentence can convey. ये सेंटेंस क्या बोलता है? Convey means मैसेज क्या देता है? इस सेंटेंस में क्या चीज है जो हमें बोला जाता है? इस सेंटेंस में क्या चीज है जो हमको बोला जाता है? हाँ? Number 1. Statement. A sentence can convey statement. Number 2 question. Number 3 exclamation. Number 4 command. यानी कि जब कोई सेंटेंस कहा जाता है, जब कोई सेंटेंस कहा जाता है, इसमें क्या है? इसमें either it can convey statement, either it can convey statement, or it can ask a question, or it can ask a question, or you will find any sort of exclamation there. You will find any sort of exclamation here. Huh? Oh, what a wonderful place. What a wonderful place. It's a sort of exclamation. It's a sort of exclamation. Then there is command. Then there is command. हुकुम जिसको हम कहते हैं उर्दू में. जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? हुकुम. A sentence consists of. इस सेंटेंस में क्या चीज होता है? मैंने आपको बताया सेंटेंस is set of words that's completed itself. अब हमें यह देखना है इस सेंटेंस में क्या चीज है. इस सेंटेंस में 2 चीज है. There is one main class. There is one main class and there is another subordinate class. कितने क्लास हैं? 2 class. This is word class, not class. This is class. Huh? Yes, sir. Don't wrong the word. This is what? Class. Class. एक होता है इसमें क्या? Main class. दूसरा क्या होता है? Subordinate class. एक होता है main class. दूसरा क्या होता है? Subordinate class. वो एक सेंटेंस में कितने क्लासेस हैं? 2 क्लास. There are 2 classes in the sentence. One is main class. Another is subordinate class. Yes, sir. बात समझ में आती है? Yes, sir. बात समझ में आती है? Yes, sir. Do you follow me? Yes, sir. Okay. Now, a sentence can be simple. I have already told you. It can be compound. It can be complex. It can be compound complex. अब हमें ये देखना है कि सिंपल सेंटेंस में क्या बोल रहा है. सिंपल सेंटेंस में क्या चीज है? सिंपल सेंटेंस में क्या चीज है? A sentence with only one independent class. वो सेंटेंस जिसमें क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा. वो सेंटेंस जिसमें क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है. उसमें क्या होता है? उसमें सबऑर्डिनेट क्लास नहीं होता है.
इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिंपल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। सो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक ही क्लॉज होता है। वो तो कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है। इसमें एक ही क्लॉज होता है। व्हाट इज दैट क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। उस क्लास को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास। ओके, देन वी हैव कंपाउंड। देन वी हैव कंपाउंड दिस सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं? ये दो सिंपल सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? दो सिंपल सेंटेंस होते हैं। ये आपस में मिले हुए होते हैं, ये ज्वाइन किए हुए होते हैं। इसको ज्वाइन क्या करता है? कंजंक्शन होती है जिससे ये दो क्लास ज्वाइन होती है, या देयर इज पंक्चुएशन मार्क, या देयर इज अ पंक्चुएशन मार्क। फिर ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। मैंने सिंपल आपको बताया, सिंपल मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है? क्लास। फिर मैंने आपको क्या बताया? कंपाउंड क्लास। क्या बताया? कंपाउंड क्लास। मैं कहता हूं कंपाउंड क्लास में क्या होते हैं? दो सिंपल सेंटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? इसमें दो सिंपल सेंटेंस होते हैं, यानी कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है? दो इंडिपेंडेंट क्लास होना, मगर इंडिपेंडेंट क्लास आपस में मिले हुए हैं। ये चला ही ताकि किसी दिन कैसे चला लगे आएगा यार, या तो इसमें क्या है? कंजंक्शन आपस में मिले हुए हैं, या देयर इज अ पंक्चुएशन मार्क, या देयर इज अ पंक्चुएशन मार्क। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स क्लास में क्या होता है? देयर इज वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन डिपेंडेंट क्लास। इसमें एक होता है क्या? इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट क्लास। यानी कि दैट इज व्हाट? मैन क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास। हां, मैन क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास। अब आपको सेंटेंस में मैंने आपको बताया, एक होता है मैन क्लास, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास। एक में जिसमें सिर्फ क्या होता है? मैन क्लास ही होता है, यानी इंडिपेंडेंट क्लास होता है। इसमें क्या होता है? इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, मगर आपस में मिले हुए होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, which contains one independent class and one dependent class. It contains one independent class, one dependent class. यानी कि इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट पे दूसरा क्लास निर्भर करता है, डिपेंड करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? We call that dependent class. We call that what? Dependent class. So मैंने classify sentences are classified by their purpose. एक वो तरीका है जिससे हम सेंटेंस को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करना क्या हो? अलग अलग करना। क्लासिफाई करना किसको कहते हैं? अलग अलग करना। किसको कहते हैं? अलग अलग करना। Either it can be declarative. Either it can be declarative. Declarative मतलब क्या है? जब स्टेटमेंट हो, क्या हो? स्टेटमेंट हो। जब कोई सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव होता है। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? उसमें स्टेटमेंट होता है। उसमें स्टेटमेंट होता है। या इट कैन बी इंट्रोगेटिव, या जो पर्पस होता है सेंटेंस के पर्पस में हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा, सवाल किया जाएगा आपसे। क्या किया जाएगा? सवाल किया जाएगा। या ये इंपरेटिव होता है, यानी कि जिसमें क्या हो? जिसमें कमांड हो। जिसमें क्या हो? जिसमें कमांड हो। या एक और बात है, रूही, डू यू फॉलो मी? एक और बात है यहाँ पर सेंटेंस कैन बी एक्सक्लेमेशन, यानी कि जिसमें क्या है? जिसमें क्या है? So this way I have given you the basic information about a sentence. Basic information about a sentence. What a sentence is? How can we classify the sentence? What is the purpose of sentence? What is the purpose of sentence? What are the types of sentence? What does a sentence convey? What does a sentence convey? What does a sentence convey? बात समझ में आई? Yes sir. Have you followed? सबूने? आप लोगों ने समझा? Yes sir.